बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अभी तक हम बिजनेस पॉलिसी के कंपोनेंट में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की जिन जिन स्टेजेस को कवर कर चुके हैं वो तमाम स्टेजेस आपके लिए अंडरस्टैंड करना भी बहुत इजी होगा। आप उन तमाम कंटेंट्स को जो हमने अपने इसमें आपस की डिस्कशन की है उसको फॉलो अप भी आप रीडिंग अपनी रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक से दे रहे होंगे। एंड आई बिलीव दिस पर्टिकुलर स्टडी ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट under the concept of the application of the philosophy of business policy would have become very interesting and meaningful for you all till yet. And inshallah the remaining component of the study of strategic management for the application of the principles of business policy would also remain very interesting, very beneficial and very meaningful for you all. Dear students, we were studying the aspect of strategy implementation in our last meeting in our lecture number 17, and in this particular lecture we would have been continuing our study from the stage of strategy implementation. But before that, I would like to give you a quick review of whatever we have discussed under the philosophy, under the applications of the process of strategic management. Dear students, सबसे पहली और अहम बात यह है कि हम अपने इस सब्जेक्ट में जिसका कि टाइटल है सेमिनार्स इन पब्लिक एंड सेमिनार्स इन बिजनेस पॉलिसी, उसमें हमने पहले सेमिनार्स इन बिजनेस पॉलिसी के कंपोनेंट को टेकअप किया डिस्कस करने के लिए, इसके गिवन टेक्स्ट को कंप्लीट करने के लिए। और जब हमने अपने इनिशियल लेक्चर्स में कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस पॉलिसी को डिटेल डिस्क्राइब किया था तो हमें पता चला था कि इन ऑर्गेनाइजेशंस, particularly as far as the case of multinational organizations is concerned, they apply the principles of business policy for the attainment of their corporate objectives by following the process of strategic management. Dear students, ये जो प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ये प्राइमरीली 3 स्टेजेस का प्रोसेस है। मैं आपको कई दफ़ा इसके बारे में डिटेल पहले भी दे चुका हूँ कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अवेलेबल टू अस विद द टाइटल ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन. The second stage of the process of strategic management process is available with the title of strategy implementation, and the last stage of this strategic management process is available with the title of strategy evaluation. आजकल हम अपनी डिस्कशन सेकेंड स्टेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस पे कर रहे हैं विच इज अवेलेबल विद द टाइटल ऑफ स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन. Dear students, strategy implementation जो इस पर्टिकुलर प्रोसेस की सेकंड स्टेज है, इसकी नेचर मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी बड़े कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ आपको मैं दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ कि स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन इज प्राइमरीली एन ऑपरेशनल एक्टिविटी रिलेटेड स्टेज. हमने जो प्रीवियस स्टेज डिस्कस की थी विच वॉज अवेलेबल विद द टाइटल ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, डियर स्टूडेंट्स, वो बेसिकली एक एनालिटिकल और इंटेलेक्चुअल या कॉन्सेप्चुअल स्किल की एप्लीकेशन की स्टेज है. यानी कि स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन की स्टेज में जो कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की, top management of any multinational, in that first stage of strategy formulation actually exercises their available conceptual skill. They make it
balanced and applied together with their intellectual and analytical capacities and abilities for the formulation of the long-term objectives of the organization, which they ultimately select on the basis of the performance of industry analysis. The component of industry analysis comprises upon the performance of SWOT analysis, which we have converted into the study of strategic management process, into internal audit and external audit, which provides the top management of any organization with the available opportunities and threats, and with the strengths and weaknesses of that organization at that time. On the basis of the complete assessment and quantitative analytical study, top management converts those opportunities and threats and strengths and weaknesses into the external key factors of the organization and internal key factors of the organization, on the basis of which they ultimately formulate the long-term objectives of that organization. And in that particular step, they reach at the climax stage of their first stage of strategy formulation, which is available in the name of strategy generation, strategy evaluation, and finally, on the basis of these two steps, they select a particular strategy or a set of strategy which they are supposed to implement further for the accomplishment of their long-term objectives. So dear students, why I am narrating this story to you all again? Because here at this point in time, I really would like to make you all understand this particular aspect quite clearly. That strategy formulation, which is the first stage of strategic management process, is primarily and essentially an analytical or conceptual or intellectual activities application of the skill pool of the top management of that organization. But the stage which we have been discussing right now, which is available with the title of strategy implementation, it is essentially be an operational activity which has to be performed by the supervision of top management, first level management. They would have been working with that team which has to actually implement the strategy which organization has been formulated and selected in their previous stage for the achievement of their long-term objectives. Dear students, चंद एक और कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज के साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड हैं, जिनके बारे में एज अ स्टूडेंट आपका बहुत क्लियर होना, और इंशाल्लाह जब आप कमिंग फ्यूचर में ऑर्गेनाइजेशंस में मैनेजर्स की सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज टेक अप करके उस पे अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे होंगे, तो ये समझना एज अ स्टूडेंट एंड एज फ्यूचर मैनेजर्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अभी ऑपरेशनल एक्टिविटी को डिस्कस कर रहे हैं। और इस ऑपरेशनल एक्टिविटी में चंद एक एस्पेक्ट बहुत सेंसिटिव नेचर की हैं जो मैं अभी इस स्टेज की डिस्कशन में आपके साथ डिटेल से आपको उनके बारे में ब्रीफ करूंगा। बट एज फार एज this particular stage of strategy implementation is concerned, in our today's lecture, we would have been discussing the nature of strategy implementation again, about which I have been discussing with you all in complete detail. जैसे कि मैंने अभी आपको इसकी नेचर का एक पहलू बताया कि स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन प्राइमरीली एक ऑपरेशनल एक्टिविटी या ऑपरेशनल सेगमेंट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस का। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर स्टेज के साथ कुछ और भी कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड हैं। फॉर एग्जांपल, ये स्टेज जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस की, ये कंप्लीटली और एंटायरली फोकस करती है लेवल ऑफ एफिशिएंसी को अटेन करने पे। ये जो लेवल ऑफ एफिशिएंसी है,
हाईएस्ट लेवल ऑफ एफिशिएंसी है, इट इज डायरेक्टली कंसर्न विद द ऑनगोइंग एग्जीक्यूशन process of the implementation of the strategy of the organization. Dear students, मैंने शायद आपको भी पहले बताया था, बड़ी डिटेल से हमने इस पे डिस्कस किया था कि फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू ये जो स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन है ये ना सिर्फ एफिशिएंसी को फोकस करती है बल्कि मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप हमेशा याद रखें कि एफिशिएंसी जो है इज ऑलवेज एंड ओनली concerned with the ongoing process. फॉर एग्जाम्पल जिस तरह एक प्रोसेस हम ये स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पढ़ रहे हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट 3 स्टेजेस का प्रोसेस है। हम इन 3 स्टेजेस के प्रोसेस को जब स्टार्ट कर देते हैं तो इसका स्टार्ट होने के बाद कंप्लीट होने का, इसके मैच्योर होने का, इससे जो आप एंड रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रही हैं उनको अर्न करने का ऑर्गेनाइजेशन का एक मिनिमम एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड सेट हुआ होता है। अब अगर इस प्रोसेस के दौरान जिसमें आप अपने रिसोर्सेज को भी यूज कर रहे हैं, जिसमें आपने एक गिवन टाइट टाइम डेडलाइन के अंदर अंदर अपने इस प्रोजेक्ट और इस प्रोसेस को कंप्लीट करना है, और अगर आप गिवन रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन के साथ गिवन टाइम में अपना कोई प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं तो वी ऑलवेज रेफर इट एज द एफिशिएंसी और द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑल्दो इसके मुकाबले में जो हमारी पहली स्टेज ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है विच वाज अवेलेबल विद द टाइटल ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, वो एंटायरली फोकस करती है इफेक्टिवनेस पे। और मैंने आपको पहले भी डिटेल से ये बताया था कि इफेक्टिवनेस from the management point of view is always concerned with the end results of a process. अगर आपका प्रोसेस टाइम पे गिवन रिसोर्सेज के साथ कंप्लीट हो गया, यानी कि अगर आप एफिशिएंट रहे हैं अपने प्रोसेस की कंप्लीशन पे, तो मैंने आपको ये बताया था कि इट इज अ गारंटी दैट यू वुड डेफिनेटली अपीयर एज एन इफेक्टिव इंडिविजुअल, इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन टू। So strategy implementation would be guaranteeing you this particular aspect, that if you would have been performing your all given task at this operational stage, you would not only appear as an efficient organization, you would definitely be earning the status of an effective organization. मैं स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन की नेचर के हिसाब से जो हमारे आज के लेक्चर की आउटलाइन का पहला मेन कंपोनेंट है, डियर स्टूडेंट्स, आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं। द टेक्स्ट बुक विच आई रिकमेंडेड टू यू ऑल as a follow-up book for the understanding of the concepts of strategic management process by you all very well in a very concise and comprehensive manner, जो टेक्स्ट बुक मैंने आपको रिकमेंड की है उसके चैप्टर नंबर 8 के स्टार्ट पे जब ऑथर और एक्सपर्ट इस स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन की नेचर को डिस्क्राइब कर रहा है तो उसने ये भी लिखा है कि स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन इज लाइक मैनेजिंग फोर्सेस ड्यूरिंग द एक्शन, कि जब एक्शन शुरू हो चुका है उस दौरान आप अपने आप को, अपनी फोर्सेस को कैसे मैनेज करती हैं। और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को उसने किस कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट किया है? उसने बेटा इसे रिलेट किया है स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन की स्टेज के साथ। And he told us this something as far as making us and providing us with the justification of that strategy formulation stage. That strategy formulation is like arranging or deploying your forces before the action. कि एक्शन के स्टार्ट से पहले जैसे जैसे आप अपनी फोर्सेस को जहां जहां डिप्लॉय करती हैं वो स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन है, बट जब एक्शन शुरू हो जाता है उस एक्शन के दौरान आप अपनी फोर्सेस को किस तरह मैनेज करते हैं, दिस इज समहाउ रिलेटेड एंटायरली एंड प्राइमरीली टू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन। डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी आज की लेक्चर में जो स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से मार्केटिंग इश्यूज हैं
उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। रादर हमारा आज का ये लेक्चर नंबर 18 प्राइमरीली फोकस करेगा और इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा विद अ थॉरो एंड डिटेल्ड डिस्कशन ऑन द मार्केटिंग इश्यूज फ्रॉम स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। बट ये जो स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन की स्टडी है, इसके जो हम मैनेजमेंट इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, डियर स्टूडेंट्स, इसी की कंटिन्यूटी में मार्केटिंग इश्यूज के बाद हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट इश्यूज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ मार्केटिंग के बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इश्यूज के साथ फाइनेंस एंड अकाउंटिंग के इश्यूज वुड एंटर इनटू द पिक्चर एज फार एज दिस पर्टिकुलर स्टेज ऑफ स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन इज कंसर्न्ड। एंड फाइनली are this second stage of strategy implementation of strategic management process would inshallah mature with the discussion on management information systems issue from the implementation of the strategy point of view. Dear students, इम्प्लीमेंटिंग ऑफ द स्ट्रेटेजी के हवाले से ये जो मैंने अभी आपको स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन की नेचर के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ किया था, इसके बारे में हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को और कंसाइज मैनर में डेवलप कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन क्या है? देयर इज नो परफेक्ट स्ट्रेटेजिक डिसीजन कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास, ऑर्गेनाइजेशन की टॉप मैनेजमेंट के पास कोई भी परफेक्ट डिसीजन नहीं होता। रादर लेट मी गिव यू एन एक्सटेंडेड आइडिया अबाउट इट। मार्केटिंग के जो आपने बेसिक कोर्सेज पढ़े होंगे डियर स्टूडेंट्स, उसमें आइडिया की इंपॉर्टेंस सबसे अटमोस्ट है। एंड एन एक्सपर्ट सेज दैट कि नन ऑफ द आइडिया इज अ गुड और अ बैड आइडिया। No one could describe any idea generated by you or any of your friends as this is a good idea or otherwise as it is a bad idea. He said, who would decide whether it is a good or a bad idea? The way you implement that idea is actually be making it a good or a bad one. आपका कोई भी आइडिया जो शायद ऑन पेपर इंतहाई क्रिएटिव, इंतहाई इनोवेटिव, इंतहाई नोबल और इंटेलिजेंट साउंड करता है, वो उस वक्त तक हम उसे एक अच्छा या बुरा आइडिया नहीं कह सकते। ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि इट इज अ गुड आइडिया और अ बैड आइडिया? इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द वे यू एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर आइडिया। सो एनी स्ट्रेटेजिक डिसीजन based upon this particular impact, that if you remain successful in the implementation of a strategy in an expected manner, the way you would be expecting the desired end results of that implementation, अगर आपके वो desired end results achieve हुए तो वो एक सही strategic decision होता है। This is how this particular statement goes on. There is no perfect strategic decision. One always has to pay a price. One always has to balance conflicting objectives. कि अगर आप अपने एक पर्टिकुलर डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर रही हैं तो आपको उसकी प्राइस पे करनी होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आपने एक पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन जब इम्प्लीमेंट किया तो इसको इस कॉस्ट पे किया कि आपके पास जो दूसरा ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल था, आपने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया। Conflicting objectives, conflicting opinions and conflicting priorities. स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पे चूंकि मिडिल मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो रही है, फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट इन्वॉल्व हो रही है, मिडिल लेवल एंड फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट ने अपनी सुपरविजन में नॉन मैनेजेरियल स्टाफ से अपनी इम्प्लीमेंटेशन को एरर फ्री डेवलप कराना है, अपनी इम्प्लीमेंटेशन एफिशिएंट ग्राउंड्स पे अर्न करके उससे एंड रिजल्ट्स अचीव करने का प्लेटफॉर्म डेवलप करना है। बट एट दिस पर्टिकुलर स्टेज डिफरेंट प्रायोरिटीज,
different conflicting objectives might appear into the picture. जैसा कि हमने अपने previous lectures में दो particular topics पढ़े थे dear students, conflict management का और change management का. And at that time, I can categorically recall myself that मैंने आपको बड़े clear cut manner में ये बात समझाने की कोशिश की थी कि चूंकि strategy formulation टॉप मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और ये जो स्टेज है स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन ये प्राइमरीली मिडिल मैनेजमेंट और फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. तो इस शिफ्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से डियर स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर दिस एस्पेक्ट, मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरिंग प्रायोरिटीज विल एंटर इनटू द पिक्चर. और इन्हीं को मैनेज करने के लिए हमने अपने लास्ट लेक्चर में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और चेंज मैनेजमेंट को डिटेल से पढ़ा था कि इफ एन ऑर्गेनाइजेशन वुड हैव बीन फेसिंग एनी सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम ऑफ डिफरिंग प्रायोरिटीज conflicting objectives, तो उस स्टेज पे एक स्ट्रेटेजी स्पोर्टिव कल्चर डेवलप करने के लिए स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन को एफिशिएंट लेवल पे अचीव करने के लिए और इस प्रोसेस को रन करने के लिए आपने कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और चेंज मैनेजमेंट अप्रोचेस को एक्सरसाइज करना था ताकि आपका एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन समहाउ इस चीज के क्लोज आ सके कि एप्लीकेशन और इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन के हवाले से आपका वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन एक परफेक्ट डिसीजन रहा. द बेस्ट परफेक्ट or strategic decision is only an approximation and a risk. ये आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजिक डिसीजन कौन सा उस वक्त होता है जिसमें आप अप्रोक्सीमेशंस को हैंडल कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेशन को सामने रखते हुए अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर रहे हैं और उससे एसोसिएटेड उससे जुड़े हुए जो रिस्क हैं उन सारों को भी आप कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट और चेंज मैनेजमेंट की अप्रोचेस में क्लियर कट लेवल पे अंडरस्टैंड करते हुए एड्रेस कर रही हैं. So dear students, this particular statement was contributed by Peter Drucker that there is no perfect strategic decision. Dear students, from strategy implementation point of view, strategy implementation actually means and related to change. स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन में मैंने आपको बताया था इट इज एंटायरली रिलेटेड टू मैनेजिंग डिप्लॉइंग योर फोर्सेस बिफोर द एक्शन. जब एक्शन शुरू होने से पहले आप काम कर रहे होती हैं तो आपके पास कंट्रोल्ड कंडीशंस अवेलेबल होती हैं. आप एक्चुअल अनएक्सपेक्टेड हर्डल्स और बैरियर्स को अभी फेस आपने नहीं किया होता. सो वो स्टेज जो होती है कंट्रोल्ड कंडीशंस के हवाले की वजह से आपके पास एक सर्टन और स्मूथ पैरामीटर फाउंडेशन आपको प्रोवाइड करती है टू टेक ऑफ विद योर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स. बट दिस स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन स्टेज entirely and primarily focuses upon bringing a positive change in the manner of the achievement of their annual and long-term objectives in the form of strategy implementation in a very, very efficient manner. Dear students, then what we have to realize actually, a very important understanding, that less than 10% of strategy formulated are successfully implemented. Dear students, यहाँ पे जब हमें ये statistics available हैं कि 10% से भी कम जो स्ट्रेटजीज फॉर्मुलेट की जाती हैं उनको ऑर्गेनाइजेशंस इंप्लीमेंट कर पाती है, उनकी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एफिशिएंसी का हाईएस्ट लेवल अचीव करने के पॉइंट ऑफ व्यू से. ऐसा क्यों है? बट बिफोर दैट लेट मी रिमाइंड यू कि हम डिस्कस कर रही हैं मल्टीनेशनल फर्म्स को जिनके पास ना सिर्फ इंतहाई लुक्रेटिव
और डाइवर्सिफाइड और वाइड फाइनेंशियल रिसोर्सेज का पूल अवेलेबल होता है, उसके साथ साथ उनके पास इंटेलेक्चुअल और पर्सनल के हवाले से भी दुनिया के टॉप के मैनेजर्स का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अवेलेबल होता है। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन विच इज enjoying the backup of unlimited financial pool, an organization which is enjoying the diversified and the excellent minds of the world, what went wrong with them when it comes to implementation that less than 10% strategy are successfully being implemented by them? इसकी क्या वजह कि दुनिया की टॉप की ऑर्गेनाइजेशंस स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट तो बहुत अच्छे तरीके से कर लेती हैं, और हम उन ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे थे जिनके पास क्वालिटी के हवाले से, क्वांटिटी के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के हवाले से दुनिया की टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर और दुनिया के टॉप के ब्रेन्स और इंटेलेक्चुअल माइंड्स अवेलेबल हैं। उन्होंने इंतहाई इंटेलिजेंट, इंतहाई लॉन्ग रन ओरिएंटेड जब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स डिजाइन कर लेते हैं तो व्हाट वेंट रॉन्ग विद देम व्हेन इट कम्स टू द स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि दुनिया भर में इन मल्टीनेशनल्स में 10% से भी कम जो ओवरऑल रेशियो अवेलेबल है वो स्ट्रेटजीज सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो पाती हैं। Dear students, we have discussed the reasons of this very lower number of the ratio of the successful implementation of strategy in our last lectures in complete detail. मैंने आपको बताया था कि as far as the stage of strategy implementation is concerned, as it is an operational stage of the whole process, यहाँ पे strategy की responsibility का, एप्लीकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बहुत मेजर शिफ्ट आता है। टॉप मैनेजमेंट से काम खत्म होने के बाद मिडिल मैनेजमेंट और फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट के कंधों पे आ जाता है। इस स्टेज पे आई टोल्ड यू बिफोर the emergence and the happening of conflict is all quite natural। अगर उनको आपने उस स्टेज पे प्राइमरीली एक एक्सीलेंट मैनर में एड्रेस नहीं किया था तो आपके लिए वो इश्यूज बहुत बड़ी रीजनिंग बन जाते हैं आपकी अनसक्सेसफुल स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन की कॉज का। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन, इफ यू रिमेन्ड अनएबल in creating a strategy sportive culture at that time in your organization, the chances of successful strategy implementation in your organization will definitely go down. And along with that, I told you another thing. At this point in time, creating a strategy sportive culture is not enough if you would not have been adjusting the structure of your organization with the strategy which you have chosen at that time for the implementation purposes. Dear students, जैसा कि आपको पता होगा कि organizations के पास different structures available होते हैं। functional structures हैं, divisional structures हैं, जियोग्राफिक बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशंस अपने स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट करती है। इवन प्रोडक्ट और कस्टमर को फोकस करके भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ मल्टीनेशनल्स अपने स्ट्रक्चर्स को फॉर्मुलेट करती हैं। देन वी रिमेन्ड अवेलेबल विद द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट as far as the significance and the sensitivity of this particular stage of strategy implementation is concerned, or in other words, if you really would like to find out the reasons why even less than 10% strategy which were formulated successfully failed in implementation stage, because यहाँ पे अगर आप strategy के साथ structure को align नहीं कर रहे, यहाँ पे रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत मोटिवेटिंग, बहुत लीडिंग और बहुत उस पैराए में नहीं है कि जिसमें यू वुड हैव बीन
actually bringing and putting yourself in the position of role model for your followers. रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यहाँ पे बेसिकली अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर में जो नॉन मैनेजेरियल पोजीशन पे काम कर रहे होते हैं उनमें रूह फूंक देता है, उनको मोटिवेट करता है. दे प्रोवाइड देम विद द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज एंड एनर्जी फॉर द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन. और अगर यहाँ पे ये काम नहीं हो पाता तो वी फेस फेल्योर इन दिस स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज. एंड along with that another important point at this particular stage of strategy implementation is linking pay and performance of the employees with the overall output. Linking strategy with the creating a strategy sportive culture, linking pay and performance to the strategy, devising employee friendly policies and the resource allocation would be the prime factor, dear students, which would have been making an organization implement their strategy successfully. Otherwise the statistics are appearing as quite harsh one, कि less than 10% strategies are going to be implemented successfully. Dear students, why low strategy implementation success rate is there? Number one, failing to segment market appropriately. अब हम स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उन फैक्टर्स को डिटेल से डिस्कस कर लेंगे जो स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन की फेलियर की रीजंस बनती हैं. इसमें सबसे पहले हम मार्केटिंग ओरिएंटेड एक रीजन डिस्कस कर लेते हैं, विच इज गिवन इन दीज वर्ड्स दैट फेलिंग टू सेगमेंट मार्केट्स अप्रोप्रिएटली. मार्केट सेगमेंटेशन, डियर स्टूडेंट्स, मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी टारगेट मार्केट सेट करने में बहुत वाइटल रोल प्ले करती है. आपको याद होगा एट द पॉइंट इन टाइम व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन स्टेज, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन की मिशन स्टेटमेंट को डिटेल से पढ़ा था और उस वक्त मैंने आपको ये कहा था कि दिस मिशन स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ फिलॉसफी, statement of inspiration, statement of motivation for an organization. So although ये mission statement होती तो एक intellectual activity है, it has altogether nothing to do directly with the operational stage of strategic management process. But dear students, ये strategy implementation की stage पे एक organization को required amount of energy provide करती है. और आपको याद होगा कि स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जब हम बात कर रहे थे अपनी मिशन स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स की, वी वुड हैव डिस्कस्ड दिस समथिंग दैट द मिशन स्टेटमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली एंड प्रेफरेबली always consist and carry 9 particular components in it. पहला कंपोनेंट मैंने आपको बताया था कस्टमर्स का, दूसरा कंपोनेंट जो मार्केट के हवाले से, जो मैनेजमेंट के हवाले से, जो फाइनेंस एंड अकाउंटिंग की इश्यूज के हवाले से, जो इन सिंपल वर्ड्स एक ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव में बहुत अहम होता है, वो कॉम्प्रिहेंसिव मिशन स्टेटमेंट का थर्ड कंपोनेंट था. डियर स्टूडेंट्स, एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट द थर्ड कंपोनेंट ऑफ द मिशन स्टेटमेंट ऑफ all organization must be markets. मार्केट जो है ये एक ऑर्गेनाइजेशन की मिशन स्टेटमेंट का थर्ड कंपोनेंट होता है. और यहाँ जब हम स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से मार्केटिंग के इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, विच अपीयर्स एज अ मेजर कॉज ऑफ द फेलियर ऑफ सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन, वो पहला ये है कि मार्केट सेगमेंटेशन आपने एफिशिएंट बेसिस पे नहीं की होती.
डियर स्टूडेंट्स, मार्केट सेगमेंटेशन से आपको बहुत अच्छी तरह पता है इस कॉन्सेप्ट का कि यू सेलेक्ट योर ओन टारगेट मार्केट इन स्पाइट ऑफ टेकिंग द होल नेशनल मार्केट एज योर टारगेट मार्केट. यू सेलेक्ट सम पर्टिकुलर component of your total market to develop it as your segmented target market. Dear students, let me here quote you the example of Chaudhary Dairies Private Limited. आपको पता है ये चौधरी डेयरीज प्राइवेट लिमिटेड एक पाकिस्तान की लाहौर बेस्ड एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है. And their very famous product, now since last 2 decades almost, is available with the title of this Tetra Pak milk, जिसको कि हम हलीब के नाम से जानते हैं. चौधरी डेयरीज ने हलीब के नाम से टेट्रा पैक मिल्क को जब मार्केट करना शुरू किया था तो इन्होंने किसके कंपटीशन में किया था? नेस्ले, जो कि उस वक्त पाकिस्तान में मिल्क पैक के ब्रांड नेम के साथ टेट्रा पैक ऑफर कर रहा था. लेकिन नेस्ले की प्रोडक्ट लाइंस में, नेस्ले के टोटल प्रोडक्ट मिक्स में डियर स्टूडेंट्स खाली ये एक लाइन ऑफ मिल्क पैक which is actually a Tetra Pak milk offering of the Nestle, which is one of the world's best and the largest food manufacturing company also operating in Pakistan. ये तो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस को ऑफर कर रहे थे, लेकिन जब चौधरी डेयरीज इनके मुकाबले पे आई तो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट सेगमेंट की कि हम हलीब टेट्रा पैक हलीब ब्रांड नेम के साथ अपना टेट्रा पैक मिल्क ऑफर करेंगे. और ये हमारा उनका ये टारगेट मार्केट जो सेगमेंट उन्होंने की थी ये डायरेक्ट कंपटीशन में चला गया नेस्ले के साथ. Or this is how an organization on the basis of their product could also segment their target market. Organization also segment their market from customers' age point of view, from customers' price or pocket point of view, from customers' capacity of the purchase and the frequency of the consumption of that product point of view. So always remember this very very important aspect dear students कि अगर एक organization ने strategy formulate तो बहुत अच्छी कर ली, लेकिन अगर वो strategy implementation की stage पे success का taste नहीं enjoy कर पा रही तो उसकी पहली cause और पहली reason ये होती है that they fail actually, they remained unsuccessful actually in segment their target market. Number 2, paying too much for a new acquisition. एक और major cause for the failure of the strategy implementation by many of the multinational organizations has been given here in the name of paying too much attention for a new acquisition. एक्विजिशंस किस स्टेज पे आती हैं डियर स्टूडेंट्स? आपको याद होगा कि जब हमने एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया था तो उसमें हमने ग्रोथ स्ट्रेटजीज की कैटेगरी में एक स्ट्रेटजी डिस्कस की थी इंटीग्रेशन ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजीज. उन इंटीग्रेशन ग्रुप ऑफ स्ट्रेटजीज में हमारे पास पहली स्ट्रेटजी अवेलेबल थी फॉरवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी. Second strategy which was available to us with the title of backward integration strategy. और इन दोनों स्ट्रेटजीज की सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के बाद डियर स्टूडेंट्स एन ऑर्गेनाइजेशन यूजुअली गो ऑटोमेटिकली फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी. और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको ये दिया था कि व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन becomes successful in acquiring its main competitor, इसमें हॉस्टाइल टेक ओवर्स भी होते हैं, एक्विजिशंस भी होती है, इवन मर्जर्स भी वो स्टडी इन दिस सेम हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन स्ट्रेटजी. और जब एक ऑर्गेनाइजेशन न्यूली एक्वायर्ड यूनिट या डिवीजन पे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल ह्यूमन रिसोर्सेज के हवाले से
इंटेलेक्चुअल हवाले से, कैपेसिटी एंड प्लांट की प्रोडक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा फोकस मेंटेन करती है, एंड दे बिकम एक्चुअली समहाउ रिलैक्स at the aspect of the performance of their other unit. They usually face failure in their strategy implementation stage. Another cause and another reason why less than 10% strategy implementation face success, or more than this actually face failure. Third reason for this is falling behind competition in research and development. Dear student, this is somehow, in my opinion, the most important cause and the reason of the failure of the implementation of strategy. जब भी आप research and development में as an organization पीछे रह जाएंगे, you would be facing serious issues in the implementation of strategy. एक organization, एक community, एक मुल्क, एक कौम, अगर उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एडवांस लेवल पे हो रही है, इफ दे हैव बीन अर्निंग द इंडिजिनस सॉल्यूशंस ऑफ देयर ओन इंडिजिनस प्रॉब्लम्स, दे वुड रिमेन सक्सेसफुल. बट वेदर इट इज द मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और अ सर्विस ओरिएंटेड फर्म और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और अ कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन और अ स्पोर्ट्स प्लेइंग टीम, अगर वो अपनी टेक्निक्स, अपनी टेक्नोलॉजीज यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फाइंडिंग्स को अपनी प्रोसेसिंग और ऑपरेशंस में एग्जीक्यूट नहीं करेंगी, उससे उनको कपल विद और कंबाइन नहीं करेंगी, देन दे वुड डेफिनेटली हैव बीन फेसिंग सीरियस इश्यूज रिलेटेड टू देयर स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, डियर स्टूडेंट्स. एंड अदर रीजन for the poor strategy implementation, dear students, is this, that not recognizing benefit of computers in managing information. Management information systems issue इस particular topic और इस particular given line में हमने discuss किया कि all those organizations which would not have been backing them up in their operational stage with the swift movement and the availability of information, with the execution of management information systems in their organization, they would also have been facing difficulties in strategy implementation stage of strategic management process. डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये पहले भी बताया था इस आखिरी पॉइंट के हवाले से कि मैनेजमेंट इज द नेम ऑफ टेकिंग और मेकिंग राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम. राइट टाइम पे राइट डिसीजंस करने के लिए ऑलवेज रिमेंबर द ओनली वन इनपुट विच इज रिक्वायर्ड टू इंडिविजुअल्स एंड विच इज आल्सो रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइजेशंस is the availability of current and updated and enough amount of information. चाहे आप एक इंडिविजुअल लेवल पे आपने डिसीजन मेकिंग करनी है, चाहे आपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे डिसीजन मेकिंग करनी है, चाहे आपने कम्युनिटी और नेशन लेवल पे डिसीजन मेकिंग करनी है, आपकी डिसीजन मेकिंग एंटायरली एंड होली सोली बेस करती है अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ द लेटेस्ट अपडेटेड एक्यूरेट एम्पल इंफॉर्मेशन टू यू. और ये कौन सर्टन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक डिसीजंस करने वाले रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स को इंफॉर्मेशन हर वक्त स्विफ्ट एंड क्विक अवेलेबल है, द एग्जीक्यूशन ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम in their organizations. Dear students, the 4 successful strategy implementation factors are now we are going to discuss. The number 1 is this: firms must market goods and services well. इसमें तो कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है.
कि अगर एज एन ऑर्गेनाइजेशन आपने सक्सेसफुल स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो एज अ फर्म आपके लिए ज़रूरी है कि आप उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मार्केट करें विच इज़ नॉट ओनली जेन्युइनली एक्सीलेंट फ्रॉम देयर यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, नीड सेटिस्फेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, along with that they must be having the capacity to capture and to occupy the excellent product positioning in the minds of their customers. Number two, firms must raise needed working capital. All those firms which requires and which maintains and which certainly and given with the guarantee that they remain available with the working capital. It is again a definite benchmark. It is again a definite platform from where it appears quite certain that they remain able in the execution of their strategy in a real, efficient and successful manner. So, reason number 3, dear students, firms produce technology sound goods. मैं अभी आपको पिछली स्लाइड में यही बात कर रहा था कि वो तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, वो तमाम कमर्शियल और सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन जिनके रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फाउंडेशंस बड़ी स्ट्रांग होती हैं, अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे दे बिकम एबल टू डिजाइन, आइडेंटिफाई, develop, test, retest to confirm the excellence of their actually technology which would be helping them convert their input through processes into output. यानी कि ऐसी तमाम organizations जिनके पास latest updated technology available है और ये टेक्नोलॉजी किसकी प्रोडक्ट होती है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की कंट्रीब्यूशन होती है डियर स्टूडेंट्स। अगर आपके पास टेक्नोलॉजिकली साउंड प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो रही हैं, आप टेक्नोलॉजिकली साउंड गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इट वुड अगेन बी अ गारंटी अवेलेबल टू यू as far as successful strategy implementation is concerned. Now the fourth reason, firms must have sound information systems. जिन भी organizations के पास sound information management system available होता है, they actually raise their chances of successful strategy implementation, dear students. Along with that, as far as the marketing issues from strategy implementation point of view is concerned, marketing variables affect success or failure of strategy implementation. Dear students, यहाँ पे आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि strategy implementation stage पे strategy implementation की success या failure के chances बढ़ जाएंगे on the basis of the positive or otherwise negative performance of the functional area of marketing at that time. इसके हवाले से, मार्केटिंग के हवाले से, the most important aspect of the whole study of the marketing as a functional area for the strategy implementation point of view of the firm is given in the name of market segmentation, number 1, and number 2 is product positioning actually, dear students. Now as far as related to this marketing segmentation and product positioning is concerned, we would be moving ahead little further with the involvement of marketing issues from strategy implementation point of view. Dear students, marketing decisions requires policies available to an organization. और आपको याद होगा, in our previous lectures we have discussed that policies from the strategy implementation point of view actually provides organizations with their working environment. Working environment आपका healthy है,
आपका कल्चर बहुत स्ट्रांग है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इट वुड डेफिनेटली बी रेजिंग योर चांसेस इनटू द सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी implementation. So policies would also be affecting positively or otherwise negatively decisions related to this marketing. Number one, use exclusive dealership or multiple channels of distribution. आपका ये डिसीजन पॉलिसी बेस्ड डिसीजन होगा कि अगर आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, आपने अपनी प्रोडक्ट को सक्सेसफुली मैन्युफैक्चर कर लिया, now from marketing point of view you would have to make a policy decision that as an organization whether you would have been using exclusive dealership or whether you would have been going to opt the multiple channels of distribution. Now it is up to the nature of the product of that particular firm which is going to make this policy decision from marketing point of view whether to use exclusive dealership or better go for multiple channels of distribution. Number two, policy decision related to the implementation stage of the strategic management from marketing point of view. Marketing के point of view से जो आपने एक और policy decision लेना होता है dear students, it is like that कि whether you will use heavy or light or no TV advertising. ये आपके प्रोडक्ट के लिए आजकल के दौर में एडवर्टाइजिंग यानी कि प्रमोशन समहाउ समझी जाती है कि चाहे आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है और चाहे आप सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस हैं, आपको अपनी सक्सेसफुल प्रोडक्शन को बैकअप करना होता है एक एक्सीलेंट एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन करके। मेजॉरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो पर्टिकुलरली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बिजनेस में होती हैं डियर स्टूडेंट्स, दे यूज हैवी और लाइट or usually somehow less amount of TV advertisement to promote their particular product. बट अगर आप एक बिजनेस ओरिएंटेड प्रोडक्ट के बिजनेस में हैं, बिजनेस प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके आप उनसे अपना प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो बिजनेस प्रोडक्ट्स यूजुअली हम उनकी एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन को आम कॉमन चैनल्स पे बहुत कम देखते हैं। सो मार्केटिंग के हवाले से डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पे जो एक पॉलिसी डिसीजन लेना होता है organizations में, which would definitely be affecting the successful or otherwise unsuccessful strategy implementation, is related to making your final choice regarding advertising and promotion of your product by using heavy or light or entirely without any advertisement. And other policy decision related to marketing point of view from strategy implementation stage is limit, for example, or even bring this limit to zero, limit or not the share of business done with a single customer. कि आपने इस बारे में भी पॉलिसी डिसीजन करना है कि आपने लिमिट करना है अपने बिजनेस को एक सिंगल कस्टमर के साथ, कि अदरवाइज यू विल हैव टू टेक द अदर अप्रोच। Dear students, marketing decisions which would be policy decisions from the strategy implementation point of view at this stage would be again like be a price leader or a price follower. आपने मार्केटिंग के हवाले से स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पे ये भी डिसीजन करना होता है कि विच पॉलिसी स्ट्रेटेजी वुड यू हैव बीन ऑप्टिंग, वुड यू हैव बीन कमिंग अप विद योर स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी और वुड यू हैव बीन कमिंग अप एंड अप्रिशिएटिंग द पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी डियर स्टूडेंट्स, आपको यकीनन पता होगा कि जब हम अपनी प्रोडक्ट को प्राइस करते हैं
हाईएस्ट रेंज पे कि जो आपकी प्रोडक्ट के हवाले से मार्केट में अदर ऑल्टरनेटिव्स एंड सब्स्टिट्यूट अवेलेबल होते हैं, उसमें जो हाई प्राइस रेंज के ऑल्टरनेटिव और सब्स्टिट्यूट ब्रांड्स होते हैं, अगर आपने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस उनके अकॉर्डिंग रखनी है तो वही टर्म इट एज द स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। और इसी तरह आपकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन में आपकी प्रोडक्ट के साथ जो ऑल्टरनेटिव या सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स आपकी अपनी फर्म के या आपकी कंपीटिंग फर्म ऑफर कर रही है, अगर उन्होंने अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को लोएस्ट रेंज पे यानी कि कम वाली प्राइस पे रखा हुआ है और आप भी अपनी प्रोडक्ट को उस रेंज और उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए मार्केट करते हैं जो लोएस्ट प्राइस प्रोडक्ट को परचेज करना पसंद करता है, तो इट मींस दैट एट दैट टाइम यू आर गोइंग टू पिक penetrating pricing strategy for your organization, and this is another policy decision which you would have to make from the strategy implementation point of view, keeping in view the execution, significance, involvement of the functional area of marketing. And other policy decision for the strategy implementation from marketing point of view is given in this name, whether to offer a complete or limited warranty. Dear students, services का business जो है, आपकी physical product, टेंजिबल प्रोडक्ट जो आपने मैन्युफैक्चर की होती है, अगर आप उसकी सर्विसेज के तौर पे, उसकी बैकअप सर्विसेज के तौर पे कुछ वारंटी और गारंटी ऑफर करते हैं अपने कस्टमर को, तो इट विल नॉट ओनली बी एनहांसिंग द कॉन्फिडेंस लेवल ऑफ योर कस्टमर्स ऑन योर प्रोडक्ट्स, इट वुड डेफिनेटली बी ब्रिंगिंग मोर कस्टमर्स to purchase your product on the highest level of frequency to make you earn more profit. So ये भी एक policy decision आपने strategy implementation की efficiency को अर्न करने के लिए करना होता है कि आप ये डिसीजन मेकिंग करेंगे कि क्या आपने लिमिटेड वारंटी ऑफर करनी है या आपने कंप्लीट वारंटी ऑफर करनी है। डियर स्टूडेंट्स, another decision, policy decision which you will have to take at this particular point in time for the successful strategy implementation related to the involvement of marketing is about reward salespeople based on straight commission or combination of salary and commission। कि आपने एक और पॉलिसी डिसीजन इससे रिलेटेड करना होता है कि क्या आप अपनी सेल्स टीम को सिर्फ और सिर्फ कमीशन की बेसिस पे कॉम्पनसेट करेंगे या वुड यू हैव बीन ऑफरिंग देम अ कॉम्बिनेशन ऑफ सैलरी एंड कमीशन। सो डियर स्टूडेंट्स, along with that, the other important aspect from the successful strategy implementation point of view, as far as the significance of the functional area of marketing is concerned, is given in the name of market segmentation. Market segmentation is subdividing of a market into distinct subset of customers. Dear students, this concept is all very simple. This concept's application would be guaranteeing your successful strategy implementation. So मैं आपको बहुत strongly recommend करूंगा कि आप इस पहलू को, जो कि strategy implementation में बहुत vital role play करता है, आप इसको top priority अपने focus के हिसाब से, अपनी importance के हिसाब से add करें और attach करें। Subdividing of a market into distinct subset of customers according to needs and buying habits, कि आपने कस्टमर्स की ज़रूरियात को, उसकी नीड्स को और उसकी बाइंग हैबिट्स को, उसके बाइंग पैटर्न्स को, उसके परचेज बिहेवियर को सामने रख के करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप एक मेंस आउटफिट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है,
जो पाकिस्तान में मेन फेमस हैं, उसमें आपके पास बोनेंजा है, लेट से, उसमें आपके पास कैम्ब्रिज है, जुनैद जमशेद है। आपने भी अपना एक ब्रांड इंट्रोड्यूस कराया जो कि सेम प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, लेकिन कस्टमर्स की नीड्स को, उसकी बाइंग बिहेवियर को, उसके अदर डेमोग्राफिक्स में उसकी एज ग्रुप को भी सामने रख के आप अपनी टारगेट मार्केट को सेगमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो आप मेंस आउटफिट बनाना शुरू करते हैं, जो मेंस क्लोथिंग बनाना शुरू करते हैं, दैट इज ओनली फॉर द एज ग्रुप ऑफ 20 to 25। आपके जहन में ये है कि मेरा ये टारगेट जो मार्केट मैंने सेगमेंट की है, it is that particular segment of the total population which is college and university going young boys and girls। 20 से 25 का एज ग्रुप आपने सेगमेंट कर लिया, और अपनी वेदर की कंडीशंस को सामने रखते हुए, विंटर और समर की इंटेंसिटी को सामने रखते हुए, आपने इन कॉलेज गोइंग एंड यूनिवर्सिटी गोइंग यंग बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अगर मेंस एंड वीमेन आउटफिट और वीमेन ड्रेसिंग तैयार करना शुरू कर दी, तो दिस इज हाउ यू कैन आल्सो सेगमेंट योर टारगेट मार्केट। So market segmentation is undoubtedly be an important aspect for the successful strategy implementation. Dear students, this market segmentation is widely used in implementing strategy. Here it has been written like this, that it is a widely used approach in strategy implementation. Take my words, let me rephrase this particular statement for you as far as its significance and importance is concerned. Take it like that strategy implementation success entirely based upon your successful market segmentation. Another aspect, small and specialized firms particularly do that. आपको थोड़ी देर पहले जब मैंने चौधरी डेयरीज प्राइवेट लिमिटेड की एक एग्जांपल कोट की थी, तो डियर स्टूडेंट्स, चौधरी डेयरीज प्राइवेट लिमिटेड जो कि हलीब के ब्रांड नेम के साथ अपना टेट्रा पैक मिल्क पैक ऑफर कर रही हैं, टेट्रा पैक पैकेज्ड मिल्क ऑफर कर रही हैं, दे आर अ स्मॉल एंड वेरी माइन्यूट फर्म in relation to the competition of the Nestle, which is the world's best and top food product manufacturing company. नेस्ले बहुत बड़ी फर्म है, उसके मुकाबले में चौधरी डेयरीज एक बहुत छोटी फर्म है, लेकिन आप अगर अपनी टारगेट मार्केट को सेगमेंट सक्सेसफुली कर लेते हैं, तो जैसा कि इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमें साथ ही साथ ये भी स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल हैं कि चौधरी डेयरीज की प्रोडक्ट जो कि हलीब है, ये मार्केट शेयर इसका बहुत ज्यादा है नेस्ले की ब्रांड के साथ जो कि मिल्क पैक के नाम से अवेलेबल है। एंड चौधरी डेयरीज हैज बीन मेंटेनिंग दीज स्टैटिस्टिक्स नाउ सिंस लास्ट 10-15 इयर्स एक्चुअली। देखिए आप, इस केस में पाकिस्तान की एक छोटी सी लाहौर बेस्ड फर्म ने पूरे पाकिस्तान की टारगेट मार्केट में नेस्ले जो कि एक मल्टीनेशनल फूड मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, उसको इस मार्केट शेयर और सेल्स वॉल्यूम में नॉकआउट कर दिया। चौधरी डेयरीज का टोटल मार्केट शेयर नेस्ले के मिल्क पैक से सिंस लॉन्ग बहुत ज्यादा है। सो दिस सेकंड स्टेटमेंट दैट स्मॉल एंड स्पेशलाइज्ड फर्म्स, ये चौधरी डेयरीज स्मॉल भी है और स्पेशलाइज्ड फर्म भी है कि इट हैज बीन ऑपरेटिंग इन अ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, along with that, this market segmentation is very important variable because market and product development, market penetration and diversification require increased sales through new markets or products. अब आपको जो increased sale है वो कहाँ से available होगी?
नई मार्केट से या नई प्रोडक्ट से। नई मार्केट्स के लिए भी आपको मार्केट सेगमेंटेशन करना है और नई प्रोडक्ट्स के लिए भी डियर स्टूडेंट्स एज एन ऑर्गेनाइजेशन यू रिक्वायर सेगमेंटेशन। Along with that, dear students, marketing segmentation is again an important variable because firms can operate with limited resources. आपके लिए ये बहुत अहम चीज है। अगर आप अपनी एजुकेशंस को कंप्लीट करके यानी कि इस एमबीए को कंप्लीट करके बिजनेस करना चाहते हैं तो कभी भी इस बात से मत घबराएं कि आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, ना होने के बराबर हैं, आप किस तरह बिजनेस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप एक बहुत बड़ी फर्म के कॉम्पिटिटर के तौर पे उभर सकते हैं। आप एक स्मॉलर सेगमेंट पिक करें, एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट एंड कैटेगरी को सेलेक्ट करें और उसमें कम इन्वेस्टमेंट के साथ अपना ऑल्टरनेटिव ब्रांड दें, उसको सक्सेसफुली लॉन्च करें, उसकी क्वालिटी का स्टैंडर्ड अच्छा रखें और यू कैन इवन इन दिस पोजीशन कैन गिव अ वेरी टफ टाइम to a biggest multinational. So, firms can operate with limited resources. It enables a firm by maximizing per unit profits per segment sales. So, it is somehow very important. Dear students, other important variable of market segmentation is given here. Segmentation decisions directly affect marketing mix variables. मार्केटिंग मिक्स वेरिएबल्स का आपको पता है, प्रोडक्ट होती है, प्लेस है, प्रमोशन है एंड प्राइस, मीनिंग ऑल 4 P's ऑफ मार्केटिंग। डियर स्टूडेंट्स, मार्केटिंग मिक्स में जो कंपोनेंट फैक्टर्स हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मार्केटिंग मिक्स में 4 P's होती हैं। प्रोडक्शन है या जिससे आप प्रोडक्ट अवेल करती हैं, प्लेस है, प्रमोशन है, प्राइस है। दिस पर्टिकुलर स्लाइड में मैंने आपको इसके डिफरेंट कंपोनेंट फैक्टर्स दे दिए हैं विच वुड हैव बीन डिस्क्राइबिंग द इंपॉर्टेंस एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑल दोज फैक्टर्स विच वुड नॉट ओनली बी प्लेइंग वाइटल रोल इन मार्केट सेगमेंटेशन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, रादर इट वुड हैव बीन एडिंग वैल्यू into the next important variable of marketing which is given in the name of product positioning. Dear students, market segmentation always based upon these given 4 aspects initially: geographic, demographic, psychographic and behavioral. आपकी मार्केट सेगमेंटेशन के डियर स्टूडेंट्स ये 4 बेसिस होती हैं। ये आपने इस सब्जेक्ट से पहले और भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स में यकीनन डिस्कस किए हुए हैं कंप्लीट बेसिस पे। और जो बेसिस हैं, रीजन, कंट्री साइज, सिटी और SMSA साइज, डेंसिटी, क्लाइमेट वुड बी सर्विंग एज द बेसिस ऑफ योर सेगमेंटेशन. Other demographic bases include age, family size, family life cycle, income, occupation, education, religion, race or nationality. Dear students, the psychographic basis for the segmentation of your market includes social class, your lifestyle and your personality. Behavioral basis for the market segmentation includes use occasion, benefit sort, user status, usage rate, dear students, loyalty status, readiness stage, and attitude towards a product, dear students. The second important aspect related to marketing from strategy implementation point of view is the aspect of product positioning, dear students. Developing schematic representation that reflect how products or services compare to competitors on dimensions most important to success in the industry.
आसान अल्फाज में आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि प्रोडक्ट पोजीशन इज एक्चुअली बी द इमेज of your product which a customer carries in his or her mind, यानी कि आपके प्रोडक्ट का इमेज आपके कस्टमर के माइंड में क्या है, ये आपकी प्रोडक्ट की पोजीशनिंग को डिटरमिन करता है। डियर स्टूडेंट्स, दिस प्रोडक्ट पोजीशनिंग बेस्ड अपॉन कस्टमर वांट्स एंड कस्टमर नीड्स। प्रोडक्ट पोजीशनिंग के जो स्टेप्स हैं, यानी कि आप अपनी प्रोडक्ट का एक पॉजिटिव इमेज अपने कस्टमर के माइंड में किस तरह डेवलप करते हैं, इसमें सबसे पहला स्टेप है सेलेक्ट की क्राइटेरिया, नंबर 2 डायग्राम द मैप, नंबर 3 प्लॉट कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट्स, नंबर 4 लुक फॉर निशेस। आई बिलीव आपको इन तमाम चीजों के बारे में, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रीवियस सब्जेक्ट्स में आप पढ़ चुकी हैं। फॉर एग्जांपल निशेस, ये एक सेगमेंट जो आप टारगेट मार्केट करते हैं, उसमें जब वो बहुत छोटे साइज का सेगमेंट होता है, बहुत स्पेशलाइज सेगमेंट होता है, तो ऐसी टारगेट मार्केट या सेगमेंटेड मार्केट को हम नीश मार्केट कहते हैं। एंड देन फाइनली डेवलप मार्केटिंग प्लान। Dear students, this product positioning map has been described here in the name of low customer loyalty at one end at my right hand side and the high customer loyalty which has been given at my left hand end. Then highest convenience and lowest convenience are given at vertical level. It is about the rental car market in which two firms have been operating, and on the basis of these variables they develop the image of their product in the customer's minds. So dear students, as far as this product positioning is concerned, this map which we were discussing a moment ago, this product positioning map as strategy implementation tool, look for vacant niches actually. It helps you avoid sub-optimization, dear students, as an organization. Then don't serve two segments with same strategy. कि अगर आप दो डिफरेंट सेगमेंट्स को सर्व कर रहे हैं तो प्रेफरेबली दोनों के लिए आपको डिफरेंट स्ट्रेटेजी टेकअप करना चाहिए। डोंट पोजीशन इन द मिडल ऑफ द मैप। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पोजीशनिंग योर प्रोडक्ट, the creation of image of your product in your customer's mind from strategy implementation point of view. So dear students, thank you all. In our today's lecture, we have discussed the aspect of strategy implementation of the strategic management process. In our today's lecture, we have again provided us with the nature of strategy implementation, how it differs from the nature of strategy formulation. Then in our today's lecture, we have discussed this aspect in complete detail, that how about the involvement of the functional area of marketing from the successful strategy implementation point of view. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरा ख्याल है कि आज का लेक्चर भी आप सब के लिए मेरे प्रीवियस लेक्चर्स की तरह समझने में बहुत आसान होगा। आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में, आपकी डेली लाइफ में इसकी एप्लीकेशन आपको एक एडेड एडवांटेज प्रोवाइड करेगी इंशाल्लाह। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन के बाकी एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज।